এডেন্স উদ্যান থেকে বলছি মনির। আবারও কমেন্ট্রি বক্সে বলবো না, কমেন্ট্রি করছি আমি দর্শক আসন থেকে বসে। অত্যন্ত ভালো একটি জায়গা পাওয়া গেছে এবং যে কারণে সুযোগটাকে হাতছাড়া না করার মানসিকতা এই মুহূর্তে খেলা দেখছি আমরা। খানিকটা ক্যামেরা বন্দি করে নিচ্ছে। পাকিস্তান ব্যাট করছে 131 রান এবং 3টি উইকেটের পতন ঘটেছে। 18তম ওভারে খেলা চলছে। পাকিস্তান টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বল করছেন এই মুহূর্তে চামিরা নিজের শেষ ওভারটি বল করার জন্য আসছেন। 4 ওভার করে প্রতিটি বলার বল করতে পায় আমরা জানি। পরের বল এবার কিন্তু ভারী সুন্দরভাবে কাট করে দিয়েছেন, সজোরে আঘাত ব্যাট দিয়ে বলে এবং বল চলে গেল সবুজ ঘাসের বুক ছিঁড়ে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি মুখে বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে 4টি রান হয়ে গেল এবং দলীয় রানের এই মুহূর্তে পরিবর্তন 135 এসে গেল রান। 56 রানে ব্যাট করছেন হাফিজ এবং 18 রানে ব্যাট করছেন 13টি বল মোকাবেলা করে আকমাল জুনিয়র। এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম যে ব্যাট করলেন আকমাল জুনিয়র, 18টি রান করেছেন। বল করছেন চামিরাকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। ইতিমধ্যে 135টি রান হয়েছে। এই ওভারটির পর আরও দুটি ওভার বাকি থাকবে। তা যদি হয়, সতর্ক যদি না থাকা যায়, তাহলে কিন্তু প্রচুর রান হবে। অনেক কাক আমরা দেখছি উড়ছে, কারণ কালবৈশাখীর একটা পূর্বাভাস কিন্তু আকাশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে। পরের বল এবার কিন্তু ব্যাটে বলে ঠিক মতো হয়নি, না হলেই বা কী হবে। পরিস্থিতি কিন্তু পক্ষে রয়েছে, কারণ একটি রান অন্তত এলো। শাহিদ আফ্রিদি ড্রেসিং রুম থেকে বসে লক্ষ্য রাখছেন তার দলের সেই 2 সিনিয়র খেলোয়াড় আকমাল এবং মোহাম্মদ হাফিজ কী ধরনের ব্যাট করছেন। অনেকটাই খুশি হওয়া, কারণ রান কিন্তু সেরকমই হচ্ছে। পার্টনারশিপ 50 রানে পার্টনারশিপ আমরা স্কোর বোর্ডে দেখছি। তার মধ্যে হাফিজের 26 এবং আকমাল 19 রান কন্ট্রিবিউট করেছে। এক্সট্রা 5টি রান এসেছে। পরের বল চামিরা। এবার কিন্তু আমরা দেখলাম হাফিজ স্কোয়ার কাট করেছিলেন। বল পয়েন্ট অঞ্চলে, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাত থেকে মিস হয়ে যখন বাউন্ডারি লাইনের দিকে চলে যাচ্ছিল, ওখানে ফিল্ডার কিন্তু বলটি ফিল্ডিং করে ফেরত পাঠালেন। তার ফাঁকে আরও একটি রান এবং ওভারেরও সমাপ্তি। দলীয় রান এই মুহূর্তে 137। 18 ওভার এসেছে 3 উইकेटेर বিনিময়ে। अब 19 ओवर के खेल शुरू होंगे और देखना होगा क्या होगा। दर्शक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रन कम से कम 150 के ऊपर जाए, क्योंकि ईडन गार्डन के पिच से बल्लेबाज लोग को सपोर्ट मिलते हैं। ये बैटिंग पैराडाइज विकेट होते हैं और हम लोग को मालूम है कि क्रिकेट अगर क्रिकेटर लोग के लिए धर्म होगा तो इस मैदान ज़रूर टेम्पल होंगे, मंदिर होगा। तो अपना धर्म को सही से मानने के लिए, सही से धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ईडन गार्डन्स पे आते हैं क्रिकेटर लोग, क्योंकि ये मंदिर है। बाएं हाथ की बल्लेबाज लोग नहीं आए, क्योंकि दाएं हाथ की बल्लेबाज दोनों चल रहे हैं सही। अब लग रहा कि हाफिज को भी गियर बदल करना होगा। सिर्फ अकमल नहीं, हाफिज को भी चला के खेलना होगा। अब सिर्फ 12 गेंद बाकी हैं। हाथ में 7 विकेट जब आप लोग के पास रहते हैं तो कुछ करना पड़ता। अगर 1 नंबर जर्सी पहन के बल्ले गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पेरेरा की सिर्फ 1 ओवर किए थे। अब अपना दूसरा टीम के लिए 19वां ओवर, अगली गेंद दाएं हाथ के ओवर 2 विकेट। हाफिज भी इस बार गियर बदल के खेले, सही सोचता, इस्तेमाल भी सही किए थे, लेकिन नसीब साथ में नहीं था। बॉल साइड से बाउंड्री लाइन के क्रॉस नहीं किए, वहीं पे फील्डर मौजूद थे। जब तक फील्ड दिए डीप कवर छेद से दौड़ करके दाएं तरफ आते हुए फील्डर ने बॉल को उठाया। अब तब तक 1 रन हाफिज की बल्ले से आया। स्कोर 138, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए पेरेरा। ये T20 प्रिपरेशन खेल चल रहे हैं मैदान में ईडन गार्डन्स में, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। अब इस बार ऑफ स्टैम्प की बाहर और ज़्यादा बाहर हुए, अंपायर सही से देखा बॉल को किस एरिया से जा रहे हैं। और जब उनको कंफर्म मिला था, कंफर्मेशन कि ये बॉल वाइड होंगे और दिए हुए वाइड, ICC के नियम अनुसार से खेल चल रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं ICC के नियम। दाएं हाथ के ओवर 2 विकेट। फिर से कर डालने के लिए बॉलर पेरेरा। अगली गेंद इस बार ने अमर ने उठा के मारा, लेकिन नसीब साथ में नहीं होगा। अंदर में फील्डर है और इसी के साथ विकेट के नुकसान है। दर्शक लोग चिल्ला के आवाज दे रहे हैं, आप से
10 विकेट गिरना मतलब दर्शक का कोई दुख का बात नहीं है, खुश का बात है। खुश का बात विकेट गिरने के बाद तब होते हैं जब सईद अफरीदी जैसे बल्लेबाज को मौका मिलते हैं बल्लेबाजी करने का। 1 विकेट गिरा, लेकिन 4 विकेट स्कोरबोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। सही, क्योंकि 30 से पहले और 3 विकेट गिरे थे। शाहिद अफरीदी ये सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरा दुनिया की प्यारे और दुलारे बल्लेबाज है। जब आते हैं तो 5वां गियर से शुरू करते हैं बल्लेबाजी। ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, दर्शक लोग के मुंह से सुनाई देते हैं, ये एक क्रिकेटर है जिसको शेर कहते हैं। लेकिन मौका ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ 2 ओवर की खेल बाकी, उससे भी 2 बॉल हो चुके हैं। अगली गेंद करने के लिए बॉलर गए हाथ के ओवर 2 विकेट, सामना करेंगे हाफिज। दोनों कप्तान खेल रहे हैं, एक वर्तमान कप्तान है, एक पूर्व कप्तान है। अब इस बार बॉल को ऑन साइड में घुमाने में कामयाब हुए, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर। पॉइंट नहीं है, ऑन साइड में था, स्क्वायर लेग क्षेत्र से बिल्कुल सीमा रेखा की बाहर। 4 रन। ये पहले इनिंग्स के आखिरी ओवर की पहली ओवर और मतलब 19वां ओवर चल रहे हैं। 18.3 बॉल हो चुके हैं, स्कोर 143। अब सईद अफरीदी के लिए आवाज़ जारी है मैदान की चारों तरफ से। ईडन गार्डन उनकी बेहद पसंद की मैदान है। उन्होंने पिछला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं सपोर्ट ज़्यादा पाता हूँ, मेरे को सपोर्ट ज़्यादा मिलते हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया में मेरे को सपोर्ट मिलते हैं। और ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सही बोले थे उन्होंने, और सही आवाज़ भी यहीं से दर्शक लोग से जब शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। उनके बीच अगली गेंद हो चुकी है और इस गेंद से 1 वाइड भी हुए, शायद मैंने देखा नहीं था दूसरा, और इसके हाँ 1 वाइड हुए 144 4 विकेट के नुकसान पर। पेरेरा की अगली गेंद, अब मोहम्मद हाफिज ने इस बार डिफेंसिव शॉट लिया। डिफेंसिव मतलब सिंगल शॉट, और इसलिए लिया कि अपना कप्तान को मौका मिले, शाहिद अफरीदी को। इस शाहिद अफरीदी पिछला T20 वर्ल्ड कप में ऐसा बल्लेबाजी किए थे, इंडिया को हरा दिए थे डेथ ओवर में, टाइगर जैसा, शेर जैसा बल्लेबाजी किए थे। साउंड, सबसे बड़े साउंड अब तक जितना सुनाई दिए थे, ये साउंड सबसे बड़े साउंड है शाहिद अफरीदी के लिए। अगली गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर। जब शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करते हैं तो बॉलर लोग के ऊपर दबाव आ जाते हैं, और ऐसे ही नमूना यहीं पे दिखाई दिए हैं। शाहिद अफरीदी के विरोध में गेंदबाजी करना सही नहीं होता, आसान नहीं होता, और उनका इरादा था ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को रखूं, शाहिद अफरीदी को मारने का मौका नहीं दूं, लेकिन बॉल को देख करके छोड़ दिया क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थे, वाइड निकला। अगली गेंद पेरेरा की, अफरीदी को इस बार उठा के मारा, बॉल जा रहा बाउंड्री लाइन पे, लेकिन नसीब साथ में नहीं था। शाहिद अफरीदी पहली बॉल मुकाबला करके आउट हो चुके हैं। रन बनाने का कोई गुंजाइश नहीं था क्योंकि बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। डीप कवर में एक फील्डर तैनात थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, काम कठिन नहीं था, आसान सा कैच पकड़ने का मौका उनको मिला। और इसी के साथ 5वां विकेट के नुकसान शाहिद अफरीदी के रूप में। कप्तान भी नाखुश है, टीम के कोच भी नाखुश है, और सबसे नाखुश है ज़्यादा दर्शक लोग। उनको उम्मीद था कम से कम 1-2 छक्का तो शाहिद अफरीदी से मिले, लेकिन नहीं मिला। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में कोई पहले से नहीं बोल सकते हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि शुरू ठीक से करने से रिजल्ट सही मिलता, ऐसा नहीं। ये एक अनसर्टेन गेम है, उनकी गेम की मज़ा है अनसर्टेनिटी। अब इस बार भी नया बल्लेबाज, नया नहीं क्रॉस हो गए थे और बल्लेबाजी करने के लिए 9 नंबर जर्सी पहन के आए नया बल्लेबाज वसीम आए। वसीम नाम पाकिस्तान के लिए कॉमन है क्योंकि वसीम अकरम जैसे एक बॉलर